voor Manoj Prabhu en Samaj. Ik ben het. तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः मञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। दिल से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Allereerst bied ik mijn ongelimiteerde medegebetuiging aan mijn geliefde Diksha Gurudeo, Om Vishnupad, Asutra Siddha, Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj, die hier genadevol is om aanwezig te zijn en met jullie alles wat hij in zijn hart heeft ook te delen met jullie. Daarnaast bied ik ook mijn ongelimiteerde Dandavats-pranam aan mijn Param Gurudeo, Om Vichadika, Om Vishnupad, Asutra Siddha, Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj, naar alle gurus en naar Rupa Gurulei, naar alle Vaishnavis en ook aan alle gerespecteerde gasten. Vandaag hebben wij de laatste dag van de 5-daagse seminar gehouden, waarbij we nu aan het laatste onderdeel van het programma zijn gekomen, maar het meest belangrijkste, waarbij een sadhu, een verheven sadhu, mijn Gurudeo, hier aanwezig is om jullie zijn genade te geven. De genade van een sadhu gaat op verschillende manieren, gebeurt dat in de praktijk. Zoals ik net aangaf is Saranam Kirtan Smaranam, met name Saranam, horen, het meest belangrijkste. Daar zit heel veel shakti in. En zodoende wordt in de geschriften op verschillende plekken dit zoveel mogelijk ook benadrukt dat we dat gaan begrijpen. Satam prasanga mama viri samido, Bhavanti hirkan rasanata, Tajo shanat abuvarga varmani, Shraddha Rati Bhakti Anu Kamisha. Er wordt aangegeven dat Satam prasanga betekent wanneer we in de associatie komen van verheven toegewijden en van hun harikata luisteren, dat onze oren, onze hart gezuiverd raakt. En wat gebeurt er dan? Shraddha Rati Bhakti. Dat vertrouwen, smaak om over Bhagwan te horen, maar Bhakti zal manifesteren in ons hart. Door alleen te horen. Sravanadi. Door Sravan. Daarom, hoe heb ik mijn kennis gekregen om het seminar te kunnen presenteren aan u? Dat komt dat ik jarenlang gehoord heb van verheven zielen, zoals mijn Guru. Door het proces van Bhakti Yoga, Sravan Kirtan Smaranam toe te passen, is alles stuk voor stuk bij mij duidelijk geworden. En zo kan ieder individu ook verrijkt worden. Daarom de genade van een sadhu door zijn harikata, door vanuit zijn handen Mahamantra, Diksha, Harinaam te krijgen, is eigenlijk een situatie waarbij wij
inschrijven op het spirituele school. We moeten heel veel leren op het spirituele school. Maar hoe kan je werkelijk erkend een diploma krijgen als je ook werkelijk gaat inschrijven op de school? Dan pas gaat het proces werkelijk van toepassen. Wanneer we bij een guru komen en ons inschrijven, dan kunnen we ook gericht het proces laten verlopen. Voor die tijd moeten we ons anders kwalificeren om een keer ingeschreven te worden. En wat is minimum vereiste daarvan? Daarin moeten we verdiepen en toedenken. Dus zodoende, Bhagwan komt in een vorm. Er wordt gezegd, Jiva Shakshat Nahi Tata Chaitya Guru. Siksha Guru Haya Krishna Mahanta Swarup. Er wordt aangegeven dat wij Krishna niet kunnen zien. We kunnen Bhagwan niet zien, omdat wij geconditioneerde ogen hebben, materiële ogen. Maar daarom verschijnt Chaitya, de Paramatma, ja, verschijnt in de vorm van een sadhu in het voorschijn van ons. Door de medium van een sadhu spreekt de Paramatma tot ons. En deze sadhu wordt gezegd, Siksha Guru Krishna Mahanta Swarup, is een manifestatie van Krishna Kripa. Bhagwan zijn genade komt in de vorm van een guru in ons leven. Als Bhagwan werkelijk genade op ons wil scheppen, dan zorgt hij ervoor dat er een bona fide, zuivere leraar, zijn bhakta, in ons leven komt en ons de instructie kan geven. Daarom, probeer het proces te omarmen, altijd onder begeleiding. Als jullie onder een begeleiding blijven, dan gaan jullie niet afdwalen, worden jullie ook niet nog niet de bomen door het bos niet meer zien, maar worden jullie rechtstreeks. De tijd is schaars, kaal is daar, de tijd die we nog kunnen benutten, goed benutten. En dat we ook vooruit gaan kunnen boeken op wat we moeten. Ik heb getracht om jullie van alle kanten, vanuit mijn capaciteit, dingen aan jullie altijd dat was uit te leggen. Ja. En als jullie dat enigszins waardig vinden, dan moeten jullie begrijpen. Mensen komen aan, u heeft me geïnspireerd, u heeft me niet geïnspireerd. Maar begrijp dat wanneer kan je een leraar toetsen op wat? Aan zijn leerling. Als je naar de rijbewijs wil gaan om te weten of hij een goede rijinstructeur is, dan moet je kijken hoe vaak zijn leerlingen geslaagd zijn. Zodoende, dat geeft een capaciteit weer van een boer. Begrijp me goed. Dat wanneer we volle vertrouwen in een guru hebben, in een bonafide guru, dat het Shakti, de capaciteit in ons, ieder bij ons kan verschijnen. En ieder van ons zal zo'n 5 dagen seminar kunnen doen als we willen. Zo'n Shakti heeft het. Daarom wordt er gezegd, Mukam Kuroti Vajanam Panglum Yigyati Girim Yad Kripata Maham Vande Shri Guru Dimata. Iemand die niet kan lopen, door de genade van een Gurudev kan hij bergen beklimmen. Iemand die niet kan spreken, door de genade van een Guru kan hij een vloeiende spreker worden. Maar door de genade van een Guru. Begrijp dit en probeer de komende tijd die we nu hebben vanavond goed te benutten. En aan het einde van de rit zal mijn Gurudev Naza Harikata aan iedereen die geïnteresseerd zijn een Japamala overhandigen. En vervolgens zullen we de dag beëindigen door een mooi moment ook mensen te bedanken die ons ook mogelijk heeft gemaakt om deze 5 dagen samen te gaan. Ik dank u zeer. कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम
प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। So first of all, हिंदी बोलना है। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमल में मेरा अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गौरंद गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्रवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम नमस्कार हो। आज श्रीमद् भागवत गीता की पंचम दिवस आज अंतिम दिवस बता रहे किंतु आज तो पहला ही दिवस मैं सोच रहा था प्रारंभ हो गई, अभी गीता समाप्त कहाँ हो जाएगी। इस संसार में हम कुछ वस्तु प्रारंभ कर सकते हैं किंतु उसकी समाप्ति नहीं, क्योंकि समाप्ति शब्द कहाँ पर हो सकता है। ये जड़ जगत में एक दिन समाप्ति हो जाता है, फिनिश हो जाता है, किंतु जहाँ पर भगवत नाम भगवत कथा गीता भागवत आदि कथा होती है, कहते हैं उसकी कभी शेष नहीं है, समाप्ति। इसलिए कहीं की भी पंडित लोग भी ऐसे कहते हैं हम प्रारंभ कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं, किंतु उसकी कहाँ पर समाप्ति है कौन कह सकते हैं। क्योंकि अनादि काल से ये जीवन की धारा जो है, प्रवाह जो है, गति जो है चलती आ रही है। इसके समाप्ति कौन जाने कहां पर है, कौन बता दे सकता। हम अभी तक जो गीता की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, सारी गीता की सार ही एक शब्द में क्या कहा गया, भगवत नाम ही सार है। बड़े सुने फॉलो वही एक आ। तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी लिखते हैं, लिखा पढ़ा करके तात्पर्य क्या है, एकमात्र प्रभु के चरण में मेरा मति रहे, गति रहे। भागवत में भी यही कहा गया, सात मदिर जया भागवता भगवता अवधि।
भागवत की तात्पर्य यही है, एकमात्र भक्ति। ज्ञान की एक ही तात्पर्य है, कैसे हम भक्ति में प्रवेश करें और भगवान के सुमिरन करें, स्मरण करें। क्योंकि मानव जीवन की यह जो है सार्थक है, जो ऐसे सुंदर मानव देह पाकर के भी भजन नहीं करते हैं। शास्त्र में कहता है वो गोखर। गोखर शब्द के अर्थ होता है पशु में, यानी गांव में अतीव जो है निर्बुद्धि को गधा कहा जाता है। अर्थात मनुष्य शरीर पा करके यदि भजन नहीं किया और गधे के भांति हम बहुत काम कुछ कर लिया तो सब व्यर्थ माना जाता है। जैसे गधे के पीठ पर कुछ भी लाद दो, वो चलते रहते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में सब कुछ करते जा रहे हैं, गधे के भांति दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, किंतु अंत में क्या है सर? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि गधे के भांति लोग संसार में चलते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, किंतु अंतिम कहाँ है और उसे सार क्या है वो जानते नहीं। इसलिए उसे कहा जाता है निर्बुद्धि कहा जाता है। इसलिए वही बुद्धिमान है, वह व्यक्ति इंटेलिजेंट सोबर पर्सन है, जो व्यक्ति ऐसे मनुष्य शरीर पा करके भगवान के सुमिरन करते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मनमना भवो मद भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु। मद भक्त मेरे भक्त बनो, मद जाजी मेरा पूजा करो, मद भक्त मुझे मांग नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। इसलिए वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारतम सारी एक ही सार है, भगवान में हमारी बुद्धि रहे, भगवान का हम स्मरण करते रहे। इस संसार में अनेक लोग शास्त्र अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, किंतु आचरण कर नहीं पाते हैं, भगवत नाम नहीं करते हैं, ना भगवान की कोई मूर्ति भी मानते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में, 90% लोग आपको मिलेगा वो भगवान की स्थिति को मानते ही नहीं, नास्तिक कहा जाता है। और उसमें कुछ भी भगवान के मानते हैं तो वो केवल बस मुंह में मानते हैं, वास्तव रूप में कोई करता ही नहीं है। और उसमें भी कोई कुछ करता है तो ठीक से नहीं करता है, आचरण में नहीं रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं नहीं, मेरी पूजा करो, आचरण करो। क्यों? जब तक हम आचरण नहीं करें दूसरे हमारे पास नहीं आते। इसलिए कहा जाता है क्या, भगवान कहते हैं गीता में जत जदाद श्रेष्ठ तत्त एच रदन सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जो आचरण करते हैं उसके तरफ ही लोग प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। जो लोग आचरण नहीं करते हैं उसे कुछ नहीं मानते। इसलिए जीवन की सार क्या है? हमें आचरण करना है। ये भगवान करुणामय है, नॉट द एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन। वो हमारे ऊपर सर्वदा कृपा वर्षा कर, वो हमारे साथ ही है। जैसे हम कभी कभी कीर्तन नहीं करते हैं, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। सीताराम 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 कहिए,
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए। तुलसीदास जी इसमें बहुत सुंदर उसमें वर्णन कर रहे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कौन है? स्वयं राम अथवा कृष्ण है। ये विश्वास होना चाहिए। इस संसार में हम अकेला नहीं है, हमारे साथ कौन है सदा सर्वदा? सब समय कौन है? ये भगवान है। वही भगवान हमारे पास परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है, और वही भगवान साक्षात रूप में हमारे निकट प्रकट होते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, देखो दूध में घी है कि नहीं है? है? कैसे पता लगेगा? घी तो दिखाई नहीं पड़ते दूध में। देखो वही वह दूध को क्या करना चाहिए? जमाओ। जमाने से क्या होता है? वो दही बन जाता है। फिर दही के जब आप मंथन करते हैं, चाटनिंग करते हैं, उसे क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। और वही मक्खन के जब हम गरम करेंगे तो मक्खन से क्या मिलता है? घी मिलता है। ठीक उसी प्रकार भगवान He resides in everywhere। परमात्मा के रूप में वो सर्वत्र ही है। उसके देखने के लिए, उसके अनुभव करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। बहुत लोग, नास्तिक लोग कहते हैं भगवान किसने देखा है? ऐसे भी कुछ लोग भी कहते हैं गॉड नेवर एग्जिस्ट। तो क्या गॉड तुम्हें कहा दिया क्या कि मैं एग्जिस्ट नहीं? ऐसी बात नहीं। जिस प्रकार भाई देखो, उल्लू है ना, उल्लू जानते हो किसको कहते हैं? आओ। उल्लू दिन में नहीं निकलते नहीं है। दिन में वो क्या आंख बंद करके रहता है, क्योंकि उसको सूर्य के जो किरण के तेज जो है उसके आंख सहन कर नहीं पाते, इसलिए दिन में वो सोता रहता है और रात में क्या करता है? वो जागता है। और रात में तो सूर्य की किरण नहीं होता है। तो उल्लू क्या कहते हैं? बोले सूर्य नाम से कोई वस्तु है ही नहीं। किसने सूर्य को देखा? सूरज नाम से कोई वस्तु है ही नहीं। सन नेवर एग्जिस्ट। ऐसी लोगों की कथा है। मैं तो इसके ऊपर प्रतिवाद करता हूँ, प्रोटेस्ट करता नहीं। भगवान तुम्हारे साथ है। ये पर तुलसीदास जी कह रहे क्या तू अकेला नहीं प्यारे? कौन है आपके साथ? राम तेरा साथ है। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सही। जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, किया अभिमान जब ईमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कितने सुंदर हमारे तुलसीदास जी, इतने सुंदर सुंदर हिंदी चौपाई में पया में इतने सुंदर करके व्याख्या करते। गजब की बात। लोग अध्ययन करते नहीं, पढ़ते नहीं है, अथवा अनुशीलन नहीं करते, भजन नहीं करते, इसलिए कहा देते हैं गॉड नेवर। अरे भगवान तुम्हारे पास है, उसकी देखने के लिए आप आंख खोलो। आपके अंतर आत्मा में जो आंख है
ट्रांसेंडेंटल आईज, ट्रांसेंडेंटल विजन, उसके द्वारा ही आप भगवान के देख पाओगे। ये जड़ आंखों के द्वारा हम भगवान के देख नहीं पाएंगे। भगवान के देखने के लिए क्या चाहिए? दूसरी आंख चाहिए। वो आंख क्या है? ट्रांसेंडेंटल विजन, ट्रांसेंडेंटल आईज, जिसे कहते हैं चित्त चक्षु कहा जाता है, आंख है जिसे। वो चीज जो ट्रांसेंडेंटल आईज, वो कैसे आएगा, कैसे मिलेगा, हम कैसे उसको देखें, उसे कैसे प्रकाशित करें? है? ये जड़ आंखों की तरह हम क्या देख रहे हैं? जड़ वस्तु दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु भगवान क्या है? तो चित्त वस्तु है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी। उस भगवान को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? चित्त चक्षु, चित्त आंख चाहिए। दिस इज जस्ट कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल आईज, ट्रांसेंडेंटल विजन, ये हमें चाहिए। वो ट्रांसेंडेंटल विजन, ट्रांसेंडेंटल आंख कैसे प्राप्ति हो? उसी के अभी अभी जो बता रहे, सतांग प्रसंगात मम वीर्यो संविदो भवन्ते हित कारण रसायन कथा तज्जोसनात् आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति क्रमेष्यति। श्रीमद् भागवत में 3rd canto, तृतीय स्कंद, द कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कपिल देव एंड माधव देवहूति, माँ देवहूति। भगवान कपिल देव सुना रहे, हे माता सुनो, जीवन की जो सार है आपको मैं बताता हूं। स्वयं भगवान कपिल देव अपनी मां को इतने सुंदर उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश है? ये सतांग प्रसंगात मम बीज संविदो भवन्ते हित कर्ण रसायन कथा तज्जोसनात् आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति प्रविष्यति। हे मां, माता सदा सर्वदा संत महात्मा के सानिध्य में निकट में रहना, संत महात्मा के मुखारविंद से मेरी यानी भगवान की जब अमृतमय कथा को जो है, ब्रजवती कथा को श्रवण करना है। जिनके सतांग प्रसंगात मोहित संगो भवंती हित करना रसायन कथा तो जो सनाद आसु अपवर्ग वर्तमनी, जितने भी की माया जो है वो अपने आप छूट जाए। भगवत कथा में इतनी शक्ति है, ताकत है? क्योंकि ये भगवत कथा मीन्स स्वयं भगवान है। आप गीता की कथा श्रवण कर रहे हैं, मैंने साक्षात भगवान आपके कानों के रंध्र में, कान के छेद में प्रवेश किया, कर्ण रंध्र में प्रवेश कर और प्रवेश करके स्वयं भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। आप अनुभव नहीं कर रहे किसी कारण से, इसलिए कहते हैं इसी के अनुभव करो। और भगवान जब आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, आपके हृदय के जितने भी मैल जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब क्या हो जाता है? सब दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और अंत में धीरे धीरे स्वयं भगवान आपके निकट प्रकट हो जाते हैं और आप वो दिव्य अपराकित आंखों के द्वारा, चक्षु के द्वारा उनके दर्शन कर। यही हमें दिखाते जा रहे। जैसे हम भागवत गीता कथा श्रवण कर रहे हैं, ये गीता में कौन किसको बोल रहे हैं ये भी हमें जानना चाहिए। ये तो हम तो सरल रूप में कहते हैं, कृष्ण अर्जुन के सारी उपदेश दे रहे हैं, किंतु देखो इस कथा को कौन सुना रहे हैं, किसको कहेंगे? इस कथा को कुरुक्षेत्र रणभूमि में जो कुछ भी हो रहा है, स्वयं भगवान अर्जुन के जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, वो कौन बोल रहे हैं? संजय। संजय किसको बोल रहे हैं? अच्छा, संजय कैसे उसको पता चला है? बहुत लोग यही प्रश्न करते हैं। कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर कम से कम 300 किलोमीटर दूर कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल। तो कैसे देखा?
कहते हैं व्यास प्रसादेन, व्यासदेव की कृपा से संजय के क्या प्राप्ति हुई? दिव्य चक्षु प्राप्ति हुई। ये आंखों के द्वारा नहीं देख पाएंगे, हम इस आंखों से कितना दूर देख सकते हैं? 50 मीटर दूर पीछे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो भी हमें अंधकार में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। है नहीं कि नहीं? सच है कि नहीं? 50 मीटर दूर तक हम देख नहीं पाते, 20 मीटर दूर तक देख नहीं पाते है? और संजय कहाँ देख रहे हैं? हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र के पास। और युद्ध कहाँ, युद्ध की भूमि कहाँ, कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? कम से कम 300 किलोमीटर दूर। बोले कैसे देख रहे हैं? इसलिए कहते हैं व्यास प्रसादेन, व्यासदेव की कृपा से संजय के क्या प्राप्ति हुई? दिव्य चक्षु प्राप्ति हुई। और वो दिव्य चक्षु के द्वारा वो समस्त लीलाओं को दर्शन कर रहे हैं। और जैसे जैसे लीलाओं को दर्शन करते जा रहे हैं उसी कथा को संजय धृतराष्ट्र के बता रहे हैं। देखो हाँ, भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत दूर की बात है, अब यहां तक पहुंच जाए, कहां तक पहुंच जाए? ये किस प्रकार संजय व्यासदेव की कृपा प्राप्त करके इस सारी लीलाओं को दर्शन कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है? ये व्यासदेव क्या चीज है? गुरुपाद। इसको आप समझने के लिए प्रयास करें। हम डायरेक्ट भगवान के दर्शन कर नहीं पाएंगे। आप हजारों प्रयास कर लीजिए, जब तक हमारे गुरु की कृपा नहीं हो तब हम भगवान के दर्शन कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये पर भी शिक्षा दे रहे हैं, जब तक हम गुरु के चरण आश्रय नहीं करें, गुरु की कृपा हम प्राप्ति नहीं करें तो भगवत दर्शन संभव नहीं। और गुरु की कृपा कैसे प्राप्ति हो? और गुरु की आदेश उपदेश सेवा आदि पालन करते करते गुरु की कृपा हमारे ऊपर अपने आप वर्षित हो जाए। मर्सी वर्षण कृपा है। और गुरु की कृपा से तब वो दिव्य चक्षु हमारे प्रकाशित होगा, ट्रांसेंडेंटल विजन आएगा, तो हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। यही गीता की बताते जा रही है। ये उसी दिव्य चक्षु के देखो, यह तक भी हम भी बात क्या, श्रीमद् भागवत गीता में भी 11 अध्याय में, जहां पर कौन सा योग, विश्व क्या बोले, विश्व दर्शन योग जहां पर बता है, विश्व रूप दर्शन जहां पर बता है। स्वयं भगवान कहने अर्जुन मेरे विराट स्वरूप के दर्शन करो। भगवान की पर कृपा कर दी और देखा क्या, वही भगवान अनंत स्वरूप में प्रकाशित है, वही काल रूप में है। गीता आप अध्ययन करते ना, देखो स्वयं अर्जुन ने क्या देखा, जो वही कृष्ण अनंत स्वरूप में प्रकाशित है, साक्षात काल रूप में प्रकट होकर के कैसे विश्व ब्रह्मांड के ध्वंस करते जा रहे, अनंत कड़ी ब्रह्मांड अनंत कड़ी रूप में प्रकाशित होते जाए, अनंत कड़ी विश्व ब्रह्मांड उनके मुख गहर में मुंह में प्रवेश करे और फिर उनकी मुंह से जो है आ रही है सृष्टि स्थिति प्रलय ऐसे होते जा रहे। जिस कृष्ण के साथ अर्जुन सखा का संबोधन कर रहे थे, आज क्या कहने लगे, बस ऐसे विश्व रूप दर्शन करके और अर्जुन के क्या हो गया, भय हो गया, भीत हो गए और रथ से कूद गए और कूद करके हाथ जोड़ने लगे। चलिए चित्र आप देखेंगे कहीं है, दिखाए ना, क्या बोले, सखीति मत्वां प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, सखेति मत्वां प्रसवं, हे कृष्ण मैं तो अपराधी हूं, आपको मैंने सखा कह करके हंसी दिल लेके उड़ाया, आपके सखा कह करके मैंने मित्र कह करके मैंने आपके साथ इतने घोल मेल हो गए, मैंने मित्रता कर ली,
आप मैंने रथ चलाया, आपके मैंने आदेश दिया, हे मित्र मेरे रथ को इस तरफ चलाओ, इस तरफ ले चलो। यहां तक भी मैंने आदेश दे दिया, हे सखा मित्र मेरे घोड़े के जो पैर से उसके दबाव है। ना जाने कैसे कैसे उपदेश दे, किंतु आप तो मेरा मित्र नहीं है, आप साक्षात परब्रह्म भगवान। मैं अपराध किसे सकेत मत्वान कसबं जदुक्तम, हे कृष्ण हे जादव ही सके, मैं तो अपराध है। देखो वही पर ब्रह्म भगवान की ऐसे विराट स्वरूप है, विश्व रूप जो दर्शन जिसको कहा जाता है। अर्जुन के हृदय में क्या, फिर स्वयं भगवान और वो सारे रूप को अंदर में समेट लिया। यू अंडरस्टैंड? समेट लिया। और वही अर्जुन फिर देखा, वही विशुद्ध स्वयं भगवान मंद मुस्कान करते हुए है और अत्यंत प्रेम वृद्धि के साथ भगवान के निकट फिर बातचीत करने लगे। अर्जुन मेरे कहने की यही तात्पर्य है, वो भगवान सर्वत्र हमारे पास है, उसके देखने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें क्या चाहिए? वह गुरु के पास जाना चाहिए। वह गुरु के कृपा से ही ये समस्त हमारे हृदय में प्रकटित होगा। अपने विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा कोई जान नहीं सकता। नायक आत्मा प्रवचन लभो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैसे विनुते तेन रब्भ तस्यैष आत्मा विभ्रूते तरुसाम। उपनिषद में कहते जा रहे वह भगवान के जानने के लिए एक ही उपाय है। क्या एक उपाय है? ऐसे कोई गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, जिनके चरण में जाकर के मैं अपने को समर्पित कर दूं, विद्या के द्वारा, पांडित्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसके भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। उसी की प्राप्ति के लिए एक ही स्वभाव, एक ही क्या है? अत्यंत सरल रूप में, वेरी सिंपल, जस्ट टू सरेंडर गुरु के चरण में हम जब समर्पित कर देते हैं तब हम उसको प्राप्ति कर देते हैं। इसी को गीता को जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, अंतिम सार यही बोलते जा रहे हैं। और अंत में भगवान भी कहते हैं, वही कलियुग में भगवान नाम रूप में प्रकटित हुए। इसी भी समझने के लिए प्रयास करें। कलियुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु उतर ही पारा। तुलसीदास जी कहते हैं वही स्वयं भगवान तीन स्वरूप में हमारे निकट है। एक है नाम स्वरूप है, आप जप कर क्या नाम जप किया, ये लिखा है क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये साक्षात नाम ही जो है, ये शब्द ब्रह्म का जो ट्रांसेंडेंटल साउंड, ये स्वयं भगवान कलियुग में नाम रूप में ही प्रकट हुए। नाम बिने कलि काले नहीं आड़ धर्म सर्व शास्त्र यही सार मर्म। समस्त शास्त्र की एसेंस सार क्या है? हरि नाम, और कुछ नहीं है। जितने भी लिखा पढ़ा कर लिए, जितने भी वेद पुराण उपनिषद जो कुछ भी पढ़ लिया जाए, जो कुछ भी अध्ययन कर लिया जाए, सबकी सार दो अक्षर है। क्या दो अक्षर? राम और कृष्ण। बस यही दो अक्षर के जो रट लेते हैं, ये दो अक्षर के जो अमल कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, उसके उस जीवन सार्थक हो जाता है। देखो समय ज्यादा नहीं लेता हूँ, समय हो चुका है, मैं अधिक समय नहीं लेता हूँ। एक रामायण की सुंदर कथा आपको सुनाता हूँ, शायद आप लोग जाने हो, सुनिए। रामायण तो देखे होंगे, टीवी में दिखाते हैं। देखो आप लोग जानते हैं, रावण सीता को हरण करके ले गए। भगवान रामचंद्र वानर सेनाओं के द्वारा लंका को चढ़ाई करने के लिए आगे समुद्र के तट पर आए। नॉल नील आदि
हनुमान आदि, जम्बुवान आदि समस्त बड़े बड़े वीर जो है सब आ गए। और इतना समुद्र, विशाल समुद्र है, ये समुद्र के पार कैसे करेंगे है? और वो हनुमान कहां पर, एक सीता देवी कहां पर है, कहां, उसकी भी खोज करना है? इसलिए स्वयं भगवान रामचंद्र हनुमान को आदेश दिया, हनुमान तुम जाओ, संधान लेकर के आओ, पता लगाओ। हनुमान जी छलांग लगाई। कहां छलांग लगाई? समुद्र के ऊपर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी चले गए लंका में। कथा तो बहुत विस्तृत है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं केवल दिक निर्देशन करने के लिए, वेरी ब्रीफली आई टेल यू। तो हनुमान सीता जी को पता लगाया लंका में, ये अशोक वाटिका में वहीं पर विराजमान। इसके पश्चात हनुमान जी समाचार लेकर के पुनः आ रहे, और इधर स्वयं भगवान रामचंद्र विचार कर रहे हैं, अभी तो हनुमान तो आए ही नहीं, अभी तो हनुमान नहीं आए, क्या बात। समुद्र के तट पर विराजमान थे। इतने समय सारे बंदर आदि जो किलकारी करने लगे, आनंद उत्सव करने लगे। हनुमान जी बोलो बजरंग बली की जय। सब बजरंग बली हनुमान जी के जय जयकार देने लगे। तब भगवान रामचंद्र पूछने लगे क्या बात है, ये सब बजरंग बली के जय 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 क्यों दे रहे हैं? पहले तो जय सिया राम बोलते हैं ना, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अभी क्या दे रहे सब? किसको जय दे रहे? बजरंग बली कौन है? हनुमान जी है। रामचंद्र बोले क्या बात हुई? सुग्रीव के पूछने लगे, ये सुग्रीव तुम बताओ, सब तो मेरे जय जयकार देते हैं, जय राम कहते ना, किंतु आज हनुमान जी जय बजरंग बली न के, क्या बात है? तो उससे सुग्रीव ने सुंदर एक कथा सुनी, ये प्रभु हनुमान जहां पर जाते हैं ना वो कहीं व्यर्थ नहीं होता, और आप जिसके ऊपर कृपा कर देते हो, आपके चरण कमल रथ जिसके ऊपर माथे पर पड़ जाता है, वो तो सर्वत्र विजय प्राप्त कर लेते। हनुमान जी सुग्रीव ने बहुत सुना है, जरूर हनुमान मां जानकी सीता देवी के पता ले करके आए हैं। बड़ी बात में हनुमान जी रामचंद्र के पास आकर के प्रणाम करके खड़े हुए। देखो रामायण में ऐसे वर्णन है, रामचंद्र हनुमान को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। अभी प्रश्न लाभ कुछ नहीं हुआ, केवल हनुमान के देखते ही भगवान रामचंद्र के हृदय द्रवीभूत हो गया। उस समय भगवान रामचंद्र हनुमान जी के प्रश्न पूछने लगे, हनुमान क्या तुम मेरे पत्नी सीता देवी को देखा? क्या किस अवस्था में देखा? जीवित अवस्था में अथवा मृत अवस्था में? समझ में आ रहे? तुमने किस प्रकार देखा, यह बात बताओ पहले। हनुमान जी एक कथा से कहने लगे, प्रभु आपने मुझे ये प्रश्न पूछा, ये सीता देवी ये मैंने देखा क्या जीवित अवस्था में अथवा उनकी मृत शरीर को देखा, ये प्रश्न पूछा, क्यों? तो उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो हनुमान, मेरे विरह में, विच्छेद में मेरा पिताजी दशरथ महाराज क्या कर दिया? शरीर छोड़ दिया है। आप लोग जानते हैं ना, जब भगवान रामचंद्र अयोध्यापुरी को त्याग देकर के चलने लगे है, और उस समय दशरथ महाराज अपने पुत्र राम की विरह जो है सेपरेशन सहन कर नहीं पाया है। इतना क्या कहा? हराम हराम हराम, बस
शरीर छोड़ दिया है। देखो मेरे विरह में मेरे पिताजी शरीर छोड़ दिया। अच्छा बताओ, पिता अपेक्षा हमारे पास प्रिय कौन होता है? पत्नी है ना। भाई रस विचार में कहते जा रहा हूं है, क्योंकि कहा जाता है रस विचार में ये होता है 3-5 प्रकार के रस होता है। एक शांत होता है, एक दास्य होता है, एक सख्त होता है और एक वात्सल्य होता है और एक माधुर्य रस होता है। ये 5 प्रकार के रस होता है। ये वात्सल्य रस अपेक्षा माधुर्य रस यानी पति पत्नी की जो संबंध जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। या थोड़ा मैं ये शब्द भी बता जा। तो मेरे विरह में जब मेरे पिताजी वात्सल्य रस, मेरे पिताजी जब शरीर छोड़ दिया और उससे अपेक्षा श्रेष्ठ रस कौन सा है? पति पत्नी की जो है माधुर्य रस जिसको कहा जाता है, कंजुगल मोड जिसको कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है क्या? कंजुगल मोड। ये श्रेष्ठ माना है। तो मेरे विरह में सीता देवी कैसे जीवित रहेगी? जब पिताजी मेरे विरह से सहन कर नहीं पाया, शरीर को छोड़ दिया और उससे भी श्रेष्ठ कंजुगल कहा जाता है, कंजुगल मैरिज कहा जाता है। तो सीता देवी कैसे प्राण कैसे रखी है? तो जरूर सीता देवी मेरे विरह में क्या किया? प्राण छोड़ दिया। देखो यहाँ पर हनुमान जी कितने विद्वान है और हनुमान जी क्या बोले? ये प्रभु आपके को बताता हूं, आप और आपके नाम में कोई अंतर नहीं है। हम जो कुछ बोलते जा रहे हैं प्रभु और प्रभु के नाम, इसमें कोई अंतर नहीं है। देयर आर नो डिफरेंस। कृष्ण एंड कृष्ण नाम है, नाम नामी अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। अभिन्नत्वात् नाम, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। देखो हम लोग के नाम और हमारे शरीर का भेद है, हमारे आत्मा और शरीर में क्या है? डिफरेंस है। किंतु भगवान में क्या होता है? उनकी शरीर आत्मा नाम में कोई डिफरेंस नहीं, अंतर नहीं है, एक ही है। जिसे कहते हैं नाम नामी अभिन्नत्वात् नाम नामी। हनुमान जी कितने सुंदर विद्वान के द्वारा भाषा के द्वारा कैसे बोले, प्रभु आप और अपना नाम के भेद कहा? सीता देवी आपके विरह में कैसे छोड़ तो शरीर को छोड़ना चाहती है किंतु छोड़ नहीं पाई। ये वास्तव सत्य है। प्रभु के विरह में शरीर कैसे धारण करें? किंतु प्रभु आपके नाम की महिमा मैं बताता हूं। हनुमान स्वयं प्रभु के नाम की कथा सुनाया। बोले क्या बोले? एक चौपाई सुनाता हूं। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी बहुत लिखा। आप लोग से जो रामायण के प्रेमिक हो व रामायण जिस लोग ने अध्ययन करते क्या बोले? नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट लोचन निज पद जंत्रित जहीं प्राण कहीं बाट। नाम पहारू दिवस निशी। उस समय हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मैं वहां जानकी कि मैंने कैसे देखा, सीता जी कैसे देखा, जो सदा सर्वदा नाम पहारू आपके नाम रूपी पहरेदार सिक्योरिटी गार्ड, उनके प्राण रूपी भाई को मानो रक्षा कर रहे हैं। नाम पहारू दिवस निशी। बोले सदा सर्वदा राम सीता देवी मां जानकी क्या कर रही है? आपके ही नाम जप कर रही है और आपके नाम बिना उनके कुछ दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए कहता है नाम पहारू। जैसे सेठ जी के घर के बाहर कौन बैठा रहता है? सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है। चौकीदार जिसको कहते हैं। चौकीदार कहाँ बैठते हैं? घर के बाहर पर बैठते हैं।
आना जाना लोगों की वो चेक करते रहता है। दुष्ट व्यक्ति के जो है वो प्रवेश नहीं करते थे। बोले ठीक उसी प्रकार नाम पहाड़, बोले आपके नाम जो है ये दो नाम अक्षर जो है रा और म, ये दो अक्षर मानो दो ही मानो पहरेदार माना दिया जाए। ये कहते हैं नाम पहाड़ दिवस निशी, बोले आपके नाम रूपी पहाड़ जो दोनों जो है ये पहरेदार माँ जानकी के बाहर बैठे हुए हैं, उनके प्राण वायु के किसी प्रकार निकालने की नहीं दे रहे, जाने की नहीं दे रहे। इसे कहते हैं नाम पहाड़ू दिवस निशी घैन तुम्हारे कपाट, और वही भी नहीं है। बोले माँ जानकी देवी क्या कर रही है? हनुमान जी बोले प्रभु आपकी ध्यान कर रही है, बस एक तो नाम जप कर रही है, आपकी नाम समझे, आपकी नाम ही जप कर रही है, और दूसरी क्या है आपके ध्यान कर। ये ध्यान क्या हो गया? इसे कहते हैं ध्यान तुम्हारे कपाट। कपाट समझते हो? दरवाजा फटक लगा हुआ है, फटक समझते हो? फटक लगा हुआ है। देखो आपके नाम और साथ ही साथ के ध्यान भी कर दिए, ध्यान तुम्हारा कपाट और लोचन निज जंत्रित, और मां जानकी की दोनों आंख कैसे है? नहीं आपके चरण कमल में मानो लगे हुए हैं। एक तो ध्यान के साथ ही साथ और उनकी दृष्टि जो कुछ भी है आपके चरण कमल में लगे। ये क्या है? लोचन निज पद जंत्री। जंत्री शब्द का अर्थ होता है ताला लगा हुआ है, समझ में? जहीं प्राण के ही बाट, बाट माने रास्ता, प्राण जाने की रास्ता है ही नहीं। एक तो बाहर के दरवाजा में कौन बैठा हुआ है? दो पहरेदार बैठे हुए हैं, चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, और फिर इसके बाद क्या है? फाटक लगा हुआ है, दरवाजा भी लगा हुआ है, दरवाजा है, फाटक लगा हुआ, और फाटक में भी ऐसे क्या है? ताले, ताला है वो लगा हुआ है। बोले प्राण कहीं के ऊपर है, मां जाने के प्राण कहां से जाएगा? रामचंद्र इसको सुन करके गदगद हो गए, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी है, और भगवान रामचंद्र समय हनुमान के जो है आलिंगन करने लगे। हनुमान तुम्हारी जय, वास्तविक सत्य है। हम भगवान की उसी प्रकार नाम करते रहे, यही नाम करने की तरीका बताया गया। हम कैसे करें? ना प्रभु के नाम चिंतन करते रहें, और प्रभु के ध्यान करते रहें, और साथ ही साथ प्रभु के सुमिरन करते रहें, स्मरण करते रहें। ये तीनों जब एकत्रित हो जाता है तब साक्षात भगवान हमारे निकट प्रकट हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हम ये कहने के तात्पर्य है गीता, भागवत, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता की जो कुछ भी हम पढ़ते जा रहे हैं, सार क्या है? दो अक्षर वास्तविक करने, दो अक्षर पे जान लेते हैं और सब कुछ हो जाता है। इसलिए दो अक्षर क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सेकंड जस्ट हमारे साथ ताली दे करके प्रभु के नाम करने बात है। बोलो सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ओ चाहे विधि राधे श्याम चाहे विधि वही
सीताराम 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 इसलिए आप लोग सभी जो है प्रभु के नाम ले लीजिए बस जीवन में। ये गीता की सार यही है, भागवत की सार यह है, वेद पुराण सभी की सार क्या है? ये प्रभु के नाम जपा करो बस, और कुछ नहीं। सुबह 2 माला कर लीजिए, शाम को 2 माला कर लीजिए। देखो दिन और रात्रि होकर के कितने घंटे होता है? 26 नहीं है ना, मैं 24 घंटे है। अच्छा चलो 23 घंटे 40 मिनट, कितने? 23 घंटे 40 मिनट आप अपने लिए रखिए। खाना पीना सोना ऑफिस में जाना सब कुछ कर लीजिए आप। मैं आपके ऊपर इतना ही कह दूं, 20 मिनट केवल प्रभु के दे दीजिए। वो भी 20 मिनट एक साथ में दे नहीं पाएंगे, आपके समय नहीं होगा, कंप्लेंट करोगे महाराज। सुबह 10 मिनट और शाम को रात को 10 मिनट सोने जाने के पहले बस 10 मिनट प्रभु के नाम जप कर लो। सुबह उठते ही है बस प्रभु के एक बार नाम कर लो। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे
क्या करो, एक बार प्रभु की माला लेकर के, ज्यादा नहीं है 10 मिनट लगता है एक माला करने में, है हमारे तो 5 मिनट लगते हैं, चलो आपके 10 मिनट भी लगे कोई बात नहीं है, कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आपकी इतने गाढ़ निद्रा होगी है, मैं क्या बताऊं, जिसके नींद नहीं आती है ना, है कहते महाराज मेरे तो दवाई खाती खाती नींद नहीं है, असर नहीं होता। देखो भगवान के नाम लेकर के सो जाओ ना, आपके इतने सुंदर नहीं है, कभी पूरी सपनों भी नहीं आए है। और देखो आपके हृदय आनंद में भर जाएगा, आपके सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा, धन संपत्ति जो कुछ भी मांगोगे, नाम चिंतामणि, मैंने कहा था नाम चिंतामणि स्वरूप है, जो चिंता करोगे वो नाम प्रभु सबका आपको दे देंगे। और अंत में मृत्यु के पश्चात, शरीर छोड़ने के पश्चात स्वयं भगवान आपको हाथ पकड़ करके, कैसे जैसे माँ जैसे बच्चे को हाथ पकड़ करके ले जाते हैं ना, जो भगवान भी साक्षात रूप में मृत्यु के समय आपको हाथ पकड़ करके कहाँ ले जाएंगे, भगवत धाम में ले चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। महाराज की। Nou mensen, we zijn aan het eind gekomen van dit 5-daagse seminarprogramma. Het doet ons heel veel deugd dat jullie met z'n allen zoveel dagen, 5 dagen de tijd hebben geïnvesteerd, energie hebben gegeven. Ondanks alle verplichtingen, ondanks alles wat er loopt, toch 5 avonden tijd vrij hebt gemaakt om hier aanwezig te zijn. En deze leer tot je te nemen. En op deze manier ook zegen te ontvangen. We sluiten het geheel af met een mala. Vijay Prabhu heeft eerder gezegd, degenen die vegetarisch zijn, principes volgen, die personen die kunnen, als ze dat willen vanuit hun hart, een tulsimala ontvangen. Dat betekent wel dat je ook, een tulsimala is iets dat krijg je 1 keer in je leven. Dat betekent ook, wij hebben zelf ooit een tulsimala gekregen en Guruji die accepteer je ook als guru op dat moment. En dat is wel iets heel belangrijks. Dus als je dat vanuit je hart wenst, dan is dat mogelijk. En voor alle andere mensen is het gewoon een geschenk, krijgen ze een nimala. Daar hoef je niet vegetarisch voor te zijn. Je ontvangt deze en kan deze op elk moment, wanneer je maar wilt, overdag, het maakt niet uit op wat voor staat, kan je op deze mala chanten. Wat we gaan doen, even praktisch. Vinay Prabhu, die zal laten zien hoe we werken van rij naar rij, van voor naar achter. Hij zal degene aanwijzen die de mala kunnen komen ophalen. Vorige jaren was het zo, sommige mensen willen hun schoenen uitdoen als ze hier bij Guruji komen de mala te ontvangen. Doe dat op je plek, want anders is hier een heleboel schoenen en dan vallen we er allemaal overheen. Dat is een paar jaar geleden gebeurd. Dus als je dat wil doen, doe dat alsjeblieft op je plek. En degene die, we werken echt van voor naar achter, dus blijf gerust zitten, je bent bijna aan de beurt. Als jouw rij aan de beurt is, dan sta je op. En intussen willen wij graag de Kirtanias vragen om ons prachtige kirtans ten gehore te brengen. En op deze manier zullen we het programma afsluiten. Voordat wij helemaal afsluiten, diegene die een tulsimala wensen te ontvangen, daarvoor is deze Prabhuji er. You can raise your hand. Hij heeft een boekje met je naam die je daarop opschrijft. En die personen mogen blijven zitten. Die hoeven dus niet direct hier naartoe te komen, dat doen we aan het einde. En tot slot willen we graag meteen iedereen bedanken die het seminar mogelijk heeft gemaakt. Alle donateurs, iedereen die een bijdrage heeft gedaan op wat voor manier dan ook. Ik had een berichtje van tevoren rondgestuurd dat de mensen een dag konden doneren. Of de snacks of drinken. Op allerlei manieren hebben mensen een bijdrage gedaan. Als er nog mensen een bijdrage willen doen, dan kan het ook voor volgende week de verdiepingssessies, dat is nog steeds mogelijk. Maar iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om tot nu toe dit mogelijk te maken, zijn wij heel bijzonder, heel dankbaar. Met name wil ik ook met dankbaar uiten. We komen hier elke jaar. Nu het is nu 6e jaar en we worden altijd heel liefdevol ontvangen. Zonder de support van mijn schoonouders, nee het is zo, en mijn schoonvader, zou het niet mogelijk zijn. Ik zie jullie van ons
tijd alles regelen, maar niet thuis, maar ook hier alles regelen. Zodat wij rustig kunnen concentreren op het secondair te geven. En ik word zo, in Nederland met heel veel andere facetten word ik belast, maar hier krijg ik het gevoel dat ik alleen maar hoef te spreken en aanwezig te zijn. Dus bedankt daarvoor. Ook mijn Mausi en Mausa en mijn nicht Gita, die hebben bijna elke dag snacks verzorgd. Vanmorgen zijn ze aanwezig om iedereen hier snacks te geven, dus ik ben dankbaar ook aan jullie. En alle CEWA-team mensen die hier gekomen zijn, we zijn met een groep hier gekomen, ze zijn allemaal vrijwillig hier gekomen. En ze hebben hun ticket betaald puur om niet alleen te genieten in Suriname, maar te supporten, zodat wij ook alles kunnen regelen en om gasten te ontvangen op de juiste manier. Dus daarvoor het applaus van onze CEWA-team. En met name ook, vandaag wil ik toch eventjes, normaal zeg ik CEWA-team mensen, maar ik wil toch 2 mensen toch benadrukken. Dat zijn Mandy en Marcel. Dat zijn mensen die daar, kom maar Mandy en Marcel, ik wil jullie toch vandaag in het zonnetje zetten. Het zijn mensen die ik in het seminar ook zoals jullie gevolgd hebben. Die van Groningen naar Den Haag komen elke keer om mijn verdiepingssessie. 3 uren, daar naartoe 3 uur terug. En ze komen elke keer, geen 1 keer missen ze als s'avonds komen. Ze zijn een voorbeeld. Kom maar even, kom. Ik weet jullie zijn bescheiden. Maar ze willen anoniem blijven, maar en daarna zijn ze vrijwillig, zijn ze hier gekomen en ze hebben 3 dagen van de huur hebben zij bekostigd. En dat is 3 days of hiring, they En niet alleen dat, ze bouwen op en ze bouwen af, elke dag. En dus niet alleen gedoneerd, maar ze zorgen ervoor dat alles hier komt. En het is voor mij een voorbeeld, mensen die hier komen, met zoveel genade. En natuurlijk ook Shiva Raghuveer, die ook alle boeken gedoneerd heeft. Ook een dag van applaus. Hij is vandaag ook aanwezig. Zijn leven is hier aanwezig. Hassan donated for everyone the Bhagavad Gita again. So everyone will get the Bhagavad Gita. So that is very nice. Dus bij deze, als ik mensen vergeten ben, ben ik mensen vergeten. Iedereen, ook jullie allemaal, die jullie elke dag hier tijd hebben gehad. Ik daarvoor applaus voor jullie zelf. Rishmi, dat is ook een hele belangrijke organisator in Nederland die van tevoren alles al regelt, in Suriname, sorry, en altijd support is. Dus ook voor haar nog een applaus. Manoj, die ook elk jaar hier komen met zijn Kirtanya, bedankt voor jullie en we gaan daar nu voor jullie ook met horen. En natuurlijk ook mijn Guruji, dat iemand dat Bangerhuis, die altijd heel erg enthousiast is om in Suriname te komen. En altijd met heel veel liefde en dedicatie altijd aan jullie, tenminste klaar is om iedereen te inspireren. Dus we willen nu overgaan. En niet te vergeten, 1 ding. Mijn moeder en mijn zus. Mijn moeder en mijn zus, die mijn jarenlang support, Shikala die zoveel voor mij betekend heeft. Dat ik dit kan doen, is ook eigenlijk door hun genade. Door hun gebed. Mijn moeder die bidde altijd dat wij altijd goed met ons zou gaan. En zij heeft altijd heel serieus het pad van Bhakti genomen. Dat was mijn inspirator. En zodoende dat ik hier ook sta. Dus nogmaals. We gaan nu over naar het Mara gedeelte. En als wie ja. Ja? Ik moet mijn mond houden.